then youngsters, old age, everyone, it is mandatory that we should know the yoga, the significance of yoga, the importance of yoga. Daily we are hearing different news that uh, many people died due to shortage of oxygen, due to this pandemic situation, or many reasons. But the main thing that we are ignoring the important things of the life. So we are fortunate to have Dr. Uttam Kalone sir, who is guiding us, and I request Professor Gawande sir to introduce Dr. Uttam Kalone sir. Gawande sir, please. Yes, sir. Good morning, everyone. I am Shivam Gawande. Today, we gather here for the online webinar on significance and importance of yoga in pandemic situation. Under the guidance of Director of the ICEM, Honorable Dr. C.S. Padmawas sir, Vice Principal Professor Yachal Jadhav sir, and all departments HODs. Also, warm welcome of staff member, student, and participant. I so pleasant to be with you today and to have the chance to introduce our chief guest and speaker, Honorable Dr. Uttam Kalwani sir. He is currently working as Professor, Department of Civil Engineering, Marathwada Institute of Technology, Aurangabad. He has been one of the main proponents of this program for several years, and it's a true standout in the field. He has a great understanding of the program and great appreciation of what it takes to truly make on significance and importance of yoga and social work with continuous path of progress and a remarkable vision of the future. Currently, he is a president of Urja Sanyog, a social organization working in the field of energy, and divisional pradhan of Bharatiya Yog Sanstha, Aurangabad and Solapur Center. Under his guidance, about 40 free yoga classes at different locations of Aurangabad city are regularly and daily conducted. He honors with prestigious award as Education Leadership Award, Excellence Award from the Institute of Engineering, India, Aurangabad, and so many. Finally, he is also just a fascinating person, and we are all in for a treat today. Without further delay, join me in welcoming Dr. Uttam Kalwani sir. Now, I requested Dr. Kalwani sir, please start the session. Thank you, Gawande sir, for introducing to me. सुप्रभात। सुप्रभात सर। भारतीय योग संस्थान, सुप्रभात, भारतीय योग संस्थान से औरंगाबाद केंद्र से ले जा रहे इस ऑनलाइन योग वर्ग, मैं उसे वर्कशॉप बोलूंगा क्योंकि सबको हमारे साथ करना है योगाभ्यास। इस सेमिनार का जो आयोजन किया है आईसीएम इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर श्री पद्मावत सर, ऑल HODs, professors, students, and all participants. I heartily welcome you all and thanks for attending this workshop. आज हम जो वर्कशॉप लेने जा रहे हैं वो जो कोविड-19 कोरोना वायरस औरंगाबाद ही नहीं, महाराष्ट्र नहीं, भारत देश नहीं, पूरे विश्व में जो फैला है और उससे पूरा विश्व, उसकी जो गति है वो कम हो गई है। सब घर में बैठे हैं, सब काम बंद है। जो विषाणु हमें दिखाई नहीं देता उससे हम सब बीमार हो रहे हैं, बहुत सारे की मृत्यु भी हो रही है और इसलिए हम सब डरे हुए हैं। तो मैं ये योग सेशन शुरू करने के पहले सबको बताना चाहता हूं कि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्यों होता है जब हमें समझ में आएगा तब हमें पता चलेगा हमें क्या करना है। अभी आप सबको पता चल गया है टीवी न्यूज पे, पेपर से कि कोरोना वायरस जो है जिसकी इम्यूनिटी कम है उसको पहले वो अटैक करता है, पहली बात। दूसरी बात,
वो हमारे नासा मार्ग से अंदर चला जाता है, गले से और फेफड़े तक। वो इतना भाग प्रभावित करता है, हमारी जो फेफड़ों की कार्य क्षमता है वो कम करता है। और इसके लिए हमें जो प्राणवायु मिलना चाहिए फेफड़े से, जो हृदय में जाता है और पूरे कोशिकाओं में जाता है, वो पूरी तरह से नहीं मिलता है। ऑक्सीजन की मात्रा पूरी तरह से नहीं मिलती है। तो ये दो कारण मेन है, एक है हमारी इम्यूनिटी और दूसरा ये जो कैसे अफेक्ट करता है वो समझना। तो स्टार्टिंग में मैं बोलता हूं, जब हम रेगुलरली योगाभ्यास करेंगे तो 101% हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और हमें वो अटैक नहीं करता है। आज हम आपको जो योगा यहाँ लेने वाले हैं वो हमारा इसका जो है नासिका मार्ग से फेफड़े तक इसका असर रहता है। तो इसको प्रभावित करने वाले जो आसन है, जो प्राणायाम है, ध्यान है, वही आज हम लेने वाले हैं, क्योंकि उसके ऊपर आज कॉन्सेंट्रेट करेंगे। योग, प्राणायाम, ध्यान ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत दिन इसको सीखने के लिए लगेंगे, लेकिन आज हम हमारा फोकस रखेंगे हमारे नासा मार्ग, गला और फेफड़े, मस्तिष्क, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से आसन है वो हम देखने जा रहे हैं। उसके पहले हम हमारे शरीर को समझना चाहेंगे। हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर एक्चुअली 3 टाइप का है। पहला ये जो स्थूल शरीर जो हमें सबको दिखाई देता है, उसको कुछ आकार है, उसको साइज है, उसको वेट है, इसे हम स्थूल शरीर कहते हैं। दूसरा टाइप का शरीर है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर यानी हमारा मन, माइंड, वो बहुत चंचल है, उसे कुछ आकार नहीं है, साइज नहीं है, लेकिन वो मौजूद है और बहुत ही चंचल है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो लाखों मिलियंस किलोमीटर जा सकता है और वापस भी आ सकता है, और उससे हम बहुत बार डिस्टर्ब होते हैं, हमारा मन किसी कार्य में नहीं लगता है। और तीसरा है हमारा जो कारण शरीर। कारण शरीर जो है यानी हमारा चित्त, इसके ऊपर बचपन से हमारे ऊपर जो भी अलग अलग संस्कार होते हैं और उनकी वजह से हम रिएक्ट होते हैं, एक्ट करते हैं, वो है कारण शरीर। एक तीनों शरीर को जो जोड़ता है उसे योग कहा जाता है। योग यानी इट इज ए यूनियन ऑफ द बॉडी, माइंड एंड सोल। ये तीनों को जो जोड़ता है ये योग है। इसके लिए योग का अनन्य साधारण महत्व है। बाकी के जो भी हम क्रिया करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जिम में जाते हैं या कुछ एक्सरसाइज करते हैं, उससे हमारे सिर्फ स्थूल शरीर पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, और उससे भी लिमिटेड पार्ट पर ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारा पूरा शरीर सुदृढ़ रखने के लिए, रोग मुक्त रखने के लिए, तनाव मुक्त रखने के लिए योग, प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा, इसका हम अभ्यास करेंगे, कुछ शुद्धि क्रिया करेंगे, तो निश्चित स्वरूप से हमारी इम्यूनिटी तो बढ़ ही जाएंगी, लेकिन हमारे जो फेफड़े हैं, ये फेफड़े की कार्य क्षमता भी बढ़ जाएंगी। उसके जो अभी हम जो फेफड़े की कार्य क्षमता ज्यादा से ज्यादा 15, 20, 25% से ज्यादा यूज नहीं करते हैं, उसकी भी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। और हमारे जो नासा मार्ग से जो इसके कोरोना के विषाणु जाते हैं, उसको भी हम आराम से रोक सकते हैं। तो बोलने जैसा बहुत कुछ है, लेकिन आज हमें करना है। और मुझे आशा है कि आप सब जितने भी आज ज्वाइन हुए हैं वो हमारे साथ योगा अभ्यास करेंगे। आपके सामने एक दरी योगा मैट डाले और उसके ऊपर मैं जैसे बताऊंगा वैसा योगा अभ्यास करना है। और हमारे साथ हमारे जो योग टीचर है वो भी आपको डेमो दिखाने वाले हैं, और वो डेमो की तरफ देखते हुए आप सब कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है और निश्चित स्वरूप से हम हमारी इम्यूनिटी बढ़ाकर रोग मुक्त रह सकते हैं। तो पहले मैं हमारे जो योग टीचर है उनका परिचय देना चाहता हूं। हमारे साथ है ए विद्या काकसांडे मैडम, ये भारतीय योग संस्थान औरंगाबाद की जिला प्रधान है। ये वर्षा देशपांडे मैडम, ये गारखड़ा एरिया की क्षेत्र प्रधान है। ये किशोर काकसांडे, ये योग शिक्षक है। और ये दिनेश देशपांडे, ये भी योग शिक्षक है। ये चारों आज आपको डेमो दिखाएंगे, उनकी तरफ देखते हुए आप सबको योगाभ्यास करना है। और कौन सा भी जो योगाभ्यास है, तो योगाभ्यास करते समय हमें जो वर्तमान काल में आता है, आप सबको पता है 3 काल है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। मैक्सिमम देखा जाए तो हम भूतकाल या भविष्य काल में ज्यादा देर रहते हैं,
और जब हम भूतकाल में जाते हैं तब हम पछतावा करते हैं, और जब हम भविष्य काल में जाते हैं चिंता करते हैं। ये दोनों भी हमें सोचते नहीं रखते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हमने वर्तमान में आना है। वर्तमान काल ऐसा है, उन्हें हम निश्चित स्वरूप से तनाव रहित रह सकते हैं, चिंता भी नहीं करते हैं, पछतावा भी नहीं करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वर्तमान काल में रहने से निश्चित स्वरूप से हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, निगेटिव थॉट नहीं आते हैं। आपको पता चल गया है तो जब हमारे मन में निगेटिव थॉट आए, हम डर गए, तो डरने से, निगेटिव थॉट से भी हमारी इम्यूनिटी बहुत जल्दी से कम होती है। तो हमें बी पॉजिटिव रहना है और निश्चित स्वरूप से हमारी इम्यूनिटी बढ़ाना है। उसके लिए बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, मेडिसिन कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपना जो लाइफस्टाइल है, अपनी जो जीवन पद्धति है, वो आप थोड़ी सी बदले तो निश्चित रूप से आप ये पा सकते हैं। और कैसे पाना है ये सब मैं आपको आज 1 बाय 1 दिखाने वाला हूं। आज जो हम करने वाले हैं 5 भागों में आज का योगाभ्यास करने वाले हैं। पहला हम करेंगे आसन, जो अलग अलग पोजेस है, लेकिन जो हमारे कोरोना वायरस के रोकने के लिए ज्यादा प्रभावशाली है, वही आसन आज हम करेंगे। दूसरे पार्ट में हम करेंगे प्राणायाम। जो प्राणायाम है, प्राणायाम से हमारा नासा मार्ग से फेफड़े तक का भाग और मस्तिष्क जो प्रभावित रख सकते हैं, वो प्राणायाम आज हम करेंगे। तीसरे भाग में मुद्राभ्यास करेंगे। मुद्राभ्यास यानी ये जो 5 अंगुलियां हैं हमारे हाथों की, वो 5 अंगुलियां में 5 तत्व है। अंगूठे में अग्नि तत्व, तर्जनी में वायु तत्व, मध्यमा में आकाश तत्व, अनामिका में पृथ्वी तत्व और कनिष्ठिका में जल तत्व। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है और लास्ट में इसमें विलीन होने वाला है। तो ये जो 5 तत्व है, जब इनसे कौन सा भी तत्व कम होता है तो हमारे शरीर में उसके रिलेटेड विकार आना चालू होते हैं। तो और इससे हम हमारा शरीर भी स्वस्थ रख सकते हैं अलग अलग मुद्रा करके। तो वो कैसे करना है ये भी आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ 3rd पार्ट में। चौथा पार्ट है ध्यान। ध्यान ये सबसे बड़ी है, जो पतंजलि योग सूत्र में दिया है, अष्टांग योग दिया है। हमारे योग के 8 अंग उन्होंने दिए। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, 5वां है प्रत्याहार, 7वां है धारणा, 7वां है ध्यान और 8वां है समाधि। ये 8 अंग दिए। तो उसमें से तीसरा अंग जो है आसन, चौथा अंग प्राणायाम और 7वां अंग ध्यान। ये तीनों आज हम यहाँ लेने वाले हैं। ये ध्यान की जो स्तर है वो काफी ऊंचा है। जितना ध्यान आप अच्छी तरह से करोगे उतनी अपनी इम्यूनिटी बढ़ जाएंगी। और ये करने के लिए बहुत ही सिंपल हमें एक्सरसाइज करना है। ये हो गया चौथा पार्ट। और जो 5वां पार्ट है वो आखिरी पार्ट आज रहेगा शुद्धि क्रिया। हमारे शरीर में हम जो सांस लेते हैं, आपको पता है कि बाहर का जो वातावरण है वो बहुत प्रदूषण है। वो प्रदूषण से बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जाते हैं और नासा मार्ग में रहते हैं। एक कोरोना वायरस भी हमारे नासा मार्ग पर जाता है, वहां ठहरता है। तो उसको बाहर निकालने के लिए योगाभ्यास में शुद्धि क्रिया दी है। बहुत ही सिंपल शुद्धि क्रिया है, पानी से हम कर सकते हैं। वो कैसी करना है उसका नाम है जल नेति। कोरोना वायरस के लिए सबसे प्रभावशाली शुद्धि क्रिया है जल नेति। कैसे करना है उसके लिए एक ऐसा लोटा लिया जाता है। ये लोटे में गर्म पानी गुनगुना भर के एक नासिका द्वारा हम पानी डालते हैं, दूसरे में बाहर आता है, फिर दूसरे में डालते हैं, इससे बाहर आता है। ये क्रिया कैसी करना है इसका डेमो भी हम आपको आज दिखाने वाले हैं। इसी तरह ये 5 भागों में आज का योगाभ्यास हम लेने वाले हैं। तो चलिए हो जाए तैयार। पहला भाग आसन करने के लिए। और कौन सा भी योगाभ्यास करने के लिए कौन सी भी आसन की शुरुआत हम सूक्ष्म व्यायाम से करते हैं। और आज के सूक्ष्म व्यायाम हम वही करेंगे जो हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाएंगे। और हम जो बैठते हैं, काम करते हैं, हमारा गले पर जो असर होता है उसको निकालने के लिए कौन से करना है सूक्ष्म व्यायाम, वो आज हमको आप सबको दिखाने वाले हैं। अब ये सूक्ष्म व्यायाम आप बैठे स्थिति में भी कर सकते हैं, खड़े स्थिति में भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बैठे स्थिति में करेंगे कुछ सूक्ष्म व्यायाम। वो पहला जो सूक्ष्म व्यायाम है वो है फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म व्यायाम है। उसके लिए क्या करना है आपको, आप दोनों हाथों की मुट्ठी बनाए, अंगूठा अंदर ले, मुठ्ठियां बनाए और ये मुठ्ठियां हमारे फेफड़े के सामने लेके आए ऐसा। अभी सांस भरे और सांस छोड़ते हुए फोर्सफुली पीछे की तरफ लेके जाए।
सांस भरते हुए सामने आना है, सांस छोड़ते हुए पीछे जाना है, फोर्सफुली। हमारे नासिका द्वारा ज्यादा से ज्यादा फोर्सफुली सांस निकालना चाहिए। आइए वापिस, अभी दोनों हाथ सामने करें और सांस भरे, सांस छोड़ते हुए दोनों मुठ्ठियां शरीर के नजदीक आए और मुठ्ठियां छोड़े। देखिए फेफड़ों के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ रहा है। तीसरी कड़ी, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाए और सांस छोड़ते हुए नीचे, या सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए नीचे, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। आइए वापिस, आखिरी चौथी कड़ी। अभी इसमें सांस भरते हुए ऊपर लेके जाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। तो आइए, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। आइए वापिस, दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें कोमलता से बंद, और देखिए हमारे फेफड़ों के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ रहा है। वो प्रभावित हो रहे हैं, शरीर में ऊर्जा का प्रभाव भी बढ़ गया है। हमारे जो अलग अलग 206 ज्वाइंट है शरीर में, वो भी इससे खुल जाते हैं। आइए अभी दूसरा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। उसके लिए आसन पर खड़े हो जाए। आजकल हम ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर, लैपटॉप पे काम करते हैं, मोबाइल पे ज्यादा रहते हैं। इसके लिए बहुत सारे जो विकार है, हमारा जो गर्दन है, तो गर्दन के ऊपर बहुत ही बुरा उसका प्रभाव पड़ रहा है, और उसकी वजह से स्लिप डिस्क, कमर दर्द, ये हमारे गर्दन का दर्द, वो बहुत सारे विकार हो रहे हैं। फ्रोजन शोल्डर भी हो रहा है। उसको निकालने के लिए बहुत ही बढ़िया एक सूक्ष्म व्यायाम है, गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम। कैसे करना है, आप आसन पर खड़े हो जाए और हमारे डेमो वाले की तरफ देखते हुए वो सूक्ष्म व्यायाम करे। उसके लिए पहले दोनों पैरों में 2-3 इंच का अंतर ले, दोनों हाथ कमर पर रखे, ऐसा रखे कि हमारे पीछे अंगूठे मिले हुए और चारों उंगलियां सामने रहे। इसी तरह हाथ रखे, कमर गर्दन सीधी। अभी सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को सामने की तरफ झुकाए और थोड़ी अपने वक्षस्थल पर लगाए। सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन ऊपर और ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ लेके जाए। सिर्फ गर्दन को घुमाए, कंधों तक का पार्ट सीधा रहेगा। फिर सांस भरते हुए ऊपर। ये हुआ एक राउंड। ऐसे 3 से 4 राउंड करेंगे। सांस छोड़ते हुए सामने, थोड़ी कनकुप में लगाए। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, ज्यादा से ज्यादा पीछे। सांस छोड़ते हुए ऊपर, फिर सामने। सांस भरते हुए ऊपर, पीछे। सांस भरते हुए ऊपर, सामने। सांस भरते हुए ऊपर, और आइए मध्य में। देखिए, इससे हमारे जो गर्दन का आगे का और पीछे का भाग है उसके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अभी इस गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम की दूसरी कड़ी, अपनी गर्दन को ज्यादा से ज्यादा दाईं तरफ घुमाए, राइट साइड। सिर्फ गर्दन को घुमाए 90 डिग्री। अपनी थोड़ी राइट कंधे पर लेके आए और देखिए हमारे गर्दन के जो स्नायु है उसके ऊपर कैसे प्रभाव पड़ रहा है। आइए, सांस भरते हुए धीरे धीरे सामने और सांस छोड़ते हुए ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट साइड, अपनी थोड़ी लेफ्ट कंधों पर। आइए, सांस भरते हुए धीरे धीरे सामने। ये हुआ एक राउंड। ऐसे 3 राउंड करेंगे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड, राइट थोड़ी राइट कंधे पर। सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, हमारी थोड़ी लेफ्ट कंधे पर। सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। देखिए गर्दन के ऊपर जो प्रभाव आ रहा है वो भी महसूस करें। सांस भरते हुए सामने। आखिरी राउंड। सांस छोड़ते हुए राइट साइड,
जितना गर्दन को ज्यादा से ज्यादा घुमा सकते वो प्रयास करे। जिन्हें स्लिप डिस्क या गर्दन के विकार है वो ना करे। आइए, सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस भरते हुए सामने। अभी गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम की तीसरी कड़ी। अभी गर्दन को ज्यादा से ज्यादा राइट की तरफ झुकाए, इतना झुकाए कि अपना राइट कान राइट कंधे पे लग जाए, कंधा ऊपर ना उठे, लेफ्ट कंधा। आइए, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, लेफ्ट कान लेफ्ट कंधे पर। देखिए हमारे राइट तरफ तनाव, लेफ्ट तरफ दबाव। आइए, सांस भरते हुए ऊपर, ये हुआ एक राउंड। ऐसे और 3 राउंड करेंगे। सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, लेफ्ट कान लेफ्ट कंधे को लगाने का प्रयास। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस भरते हुए ऊपर। आखिरी राउंड, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस भरते हुए ऊपर। आइए मध्य में। अभी गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम की चौथी और आखिरी कड़ी, गर्दन को गोलाकार घुमाना है, 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए पहले गर्दन को सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ लेके आए, ठूड़ी अपने कनकुप में लगाए। अभी सांस भरते हुए गर्दन को ज्यादा से ज्यादा राइट की तरफ लेके जाए, फिर सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड, लेफ्ट कान लेफ्ट कंधे पर और सांस छोड़ते हुए सामने। ये हुआ एक राउंड। ऐसे 3 राउंड करे। राइट, सांस भरते हुए राइट साइड, पीछे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सामने, सांस भरते हुए राइट साइड, पीछे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सामने। आखिरी राउंड, सांस भरते हुए राइट साइड, पीछे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सामने। और आइए वापिस। ये जो गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम अभी हमने हाथ नीचे लेके आए, जो किए है, उससे हमारे जो गर्दन का भाग है, मस्तिष्क है, उसके ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। कंप्यूटर पे, मोबाइल पे हम ज्यादा रहने से ये भाग ज्यादा उसके ऊपर अफेक्ट होता है, उससे हम बच जाते हैं। तो हर दिन ये हम कहाँ भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, ऑफिस में कर सकते हैं, या जहां आपको समय मिला ये जरूर करते रहे, बहुत ही एक गुणकारी है। चलो अभी आसन पर बैठ जाए। अभी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गहरा लंबा सांस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे पैर के नाखून से सिर की चोटी तक हर एक भाग में ऑक्सीजन समान रूप से वितरित होता है, सभी भाग पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये क्रिया कैसी करना है मैं आपको बताता हूं, वैसा करें। उसके लिए कौन से भी ध्यानात्मक आसन में बैठना जरूरी है। पद्मासन ये सबसे बढ़िया है। पद्मासन जिसको नहीं आता है वो अर्ध पद्मासन करे, या सिद्धासन करे, स्वस्तिकासन करे, वो भी नहीं आता तो सुखासन करे। पद्मासन कैसे लगाना है मैं इसकी विधि बताता हूं, हमारे साथ करे। दोनों पैर सामने फैला दे, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। अभी राइट पैर घुटनों से मुड़ते हुए लेफ्ट पैर की जंघा पर रखे। अभी लेफ्ट पैर घुटनों से मुड़ते हुए राइट जंघा पर रखे। दोनों एड़ियों में कम से कम फासला। जिन्हें ये संभव है जरूरी है बैठे, जो अर्ध पद्मासन में बैठे या सिद्धासन में बैठे, जिसमें आपको कंफर्टेबल लग रहा है उसमें बैठे। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाए। ज्ञान मुद्रा बोले तो अंगूठा और तर्जनी, उसका अग्रभाग एक दूसरे को टच करना है, उसको थोड़ा सा दबाना है, बाकी तीनों अंगुलियां मिला के रखना है। ऐसे फैला के मत रखे, मिला के रखे एंड अपनी कलेया घुटनों पर रखे, कमर गर्दन सीधी। अभी आपको मैंने बताया था ये 5 अंगुले में 5 तत्व है। अंगूठे में अग्नि तत्व, तर्जनी में वायु तत्व, मध्यमा में आकाश तत्व, अनामिका में पृथ्वी तत्व और कनिष्ठिका में जल तत्व। तो हमारा जो मन है उसको शांत करने के लिए, जो बहुत ही चंचल है, तो शांत करने के लिए जो चंचलता किसलिए है, ये वायु तत्व से आती है। तो ये वायु तत्व हमने अग्नि तत्व में जब मिला दिया तो वो शांत हो जाता है। इसलिए ये ज्ञान मुद्रा लगाना जरूरी है। तो सब ज्ञान मुद्रा में बैठे,
कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। या आपको देखना है तो कुछ खुले भी रख सकते हैं, लेकिन ये क्रिया आंखें बंद करने से किया तो उसका लाभ और ज्यादा मिलता है। तो कैसे करना है मैं बताता हूं। पहले एक साधारण सांस भरे, धीरे धीरे पूरी सांस को बाहर छोड़े। पूरी सांस बाहर छोड़ने पर मूलबंद लगाए। मूलबंद यानी निष्कासन आय को ऊपर खींच के पकड़ के रखना। फिर अपने नाभि मूल को ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ खींचे। नाभि मूल रीढ़ को लगाने का प्रयास। कुछ क्षण इस स्थिति में रुके। सहन न होते हुए पेट की मांसपेशी को ढीला छोड़े और आनंद पूर्वक कंठ तक सांस भरे। सहन न होते हुए सांस छोड़े। ये हुआ एक राउंड। ऐसे 3 से 4 राउंड अपने गति के साथ करना है। तो चलिए पूरी सांस को पहले बाहर छोड़े। पूरी इसका तो ऑडियो चालू है, सबके ऑडियो बंद रखे। मेरी सब जो पार्टिसिपेंट है उसको रिक्वेस्ट है अपने ऑडियो बंद रखे, डिस्टर्बेंस आ रहा है। आरती चव्हाण अनम्यूट हे करा, म्यूट करा आरती चव्हाण। ठीक है, सांस को बाहर छोड़े, मूलबंद लगाए, नाभि मूल को रीढ़ के पास लेके जाए। कुछ क्षण इस स्थिति में रुके। सहन न होते हुए पेट के मांसपेशियों को ढीला छोड़े और आनंद पूर्वक कंठ तक सांस भरे। कुछ क्षण इस स्थिति में रुके। मूलबंद लगा रहेगा, ये ध्यान में रखे। सहन न होते हुए सांस को छोड़े, पूरी सांस बाहर, बाह्य कुंभक, मूलबंद, नाभि मूल को रीढ़ को लगाने का प्रयास। कुछ क्षण रुके। सहन न होते हुए पेट की मांसपेशियों को पहला ढीला करे और आनंद पूर्वक कंठ तक सांस भरे। जितनी भर सकते उतनी जरूर भरे, तभी हमारे फेफड़े की कार्य क्षमता बढ़ जाएंगी। और इस स्थिति में कुछ क्षण रुके। सहन न होते हुए सांस बाहर। ऐसी 1-2 राउंड अपनी गति के साथ करें। ये जो गहरा लंबा सांस है, इससे हमारे जो डायफ्राम है, डायफ्राम की गति ऊपर नीचे होने से उसका हमारे शरीर के अंतर्गत जो फेफड़े है, पेट है, उसके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। पाचन क्रिया अच्छी होती है। एक क्रिया करने से हमारा पेट, मध्य और फेफड़े ये तीनों भी प्रभावित होते हैं। एक क्रिया करने से पैर के नाखून से सिर की चोटी तक हर एक भाग में प्रभावित होकर प्राणवायु समान रूप से मिलता है, मन शांत होता है। बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है। गहरा लंबा सांस। ये राउंड समाप्त होने पर आइए वापिस। अभी इसके पश्चात हम करेंगे ओम ध्वनि 3 बार और उसके बाद गायत्री मंत्र। ये ओम ध्वनि गायत्री मंत्र उससे जो वाइब्रेशन निकालते हैं हमारे शरीर में। ओम ध्वनि जब हम शुरू करते हैं, नाभि से वाइब्रेशन निकलना चालू होता है ऊपर फेफड़ों की तरफ, फिर हमारे मस्तिष्क में चले जाते हैं। उससे हमारे सब वो अवयव है वो स्वस्थ हो जाते हैं और हमारा मन भी जल्दी शांत होता है। इसके लिए ओम जाप ये सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। सुबह शाम जरूर ओम जाप करें, उससे भी बहुत सारे विकार निकल जाते हैं। तो ये कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। उसके लिए दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, कंधे तनाव रहित, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। ओ बोलते समय मुंह गोलाकार, म बोलते समय मुंह बंद रखे, 2 और 1 के अनुपात में। यानी यदि आप 2 सेकंड ओ बोलेंगे तो 1 सेकंड म बोलना है। यदि 4 सेकंड ओ बोलेंगे तो 2 सेकंड म बोलना है। 2 और 1 के अनुपात में उसका उच्चारण करना है। स्वर मधुर, श्रद्धा युक्त और सबसे उसके हमारे शरीर पर जो प्रभाव होता है वो भी आपको देखना है। वाइब्रेशन जो बेम्बी हमारे नाभि से निकलते हैं उसको भी देखना है। वो नाभि अपने मस्तिष्क पर कैसे जाते हैं वो भी देखना है। तो एक राउंड में करके बताता हूं, बाद में हम सब साथ में करेंगे। ओम ध्वनि के लिए सांस भरे। ठीक है, अभी हम सब एक साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम ध्वनि के लिए सांस भरे।
आंखें बंदी रखे, पूरा ध्यान अपने शरीर के अंदर। गायत्री मंत्र सब हमारे साथ शुरू करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आंखें बंदी रखे। गायत्री मंत्र का अर्थ, हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक है। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप से इसका ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारे बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। कुछ क्षण इस स्थिति में रहे, आंखें बंदी रखे, पूरा ध्यान अपने शरीर के अंदर। ओम ध्वनि और गायत्री मंत्र से जो हमारा मन शांत हुआ है उसका अनुभव करें। चेहरे पे स्माइल रखे। योगाभ्यास सीरियस बन के नहीं करना है, स्माइल रख के करना है, ये ध्यान में रखे। धीरे से आंखें खोले, पद्मासन खोले, चकनों की हल्की सी मसाज और आसन पर खड़े हो जाए। अभी हम खड़े स्थिति में कुछ आसन करने वाले हैं। खड़े स्थिति में ये आसन जो प्रकार है वो 4 स्थितियों में किया जाता है। कुछ आसन खड़े स्थिति में, कुछ आसन बैठे स्थिति में, कुछ आसन पेट के बल और कुछ आसन पीठ के बल। ऐसे 4 स्थितियों में अलग अलग आसन किए जाते हैं। आज हम चारों स्थिति में जो ज्यादा महत्वपूर्ण है एक कोरोना के लिए वो आज हम करने वाले हैं। समय का भी ध्यान रख के हम सब नहीं ले सकते, लेकिन जितने भी ले सकते हैं उतना आज कोशिश करेंगे। तो पहला जो आसन हम करेंगे उसका नाम है ताड़ासन। इस आसन में हमारे शरीर की स्थिति पेड़ जैसी बनती है, इसके लिए इसका नाम है ताड़ासन। हमारे पैर के नाखून से सिर की चोटी तक सभी अवयव पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और खास करके इसके हमारे फेफड़े पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। कैसे करना है वो हमारे साथ आप करें। तो एड़ी पंजे मिला ले, दोनों हाथ शरीर को सटा ले और दोनों हाथ साइड से तानते हुए हथेली का रुख ऊपर रखते हुए धीरे धीरे ऊपर लेके जाए। अंगुलें आपस में फंसा ले और दोनों हथेली अपने माथे पर लेके आए। अभी सांस भरते हुए हथेली का रुख ऊपर की तरफ करते हुए धीरे धीरे हथेलियां ऊपर ताने। दोनों भुजा कान को सटा ले, कान और दोनों भुजा में अंतर न रखे। इसी तरह वो स्पीड बनाए। एक स्थिति बनने पर और सांस भरते हुए दोनों एड़ियां ऊपर उठाए, पूरा भार अपने पंजों पर। बैलेंस टिकाना हो तो सामने किसी भी एक पॉइंट पर नजर फिक्स रखे। देखिए हमारे पूरे शरीर पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है। इससे पैर के नाखून से सिर की चोटी तक सबका अच्छा प्रभाव पड़ता है। शरीर का कड़ापन जाता है, आलस्य चला जाता है। बच्चों में कद बढ़ाने के लिए यह आसन बहुत ही गुणकारी है। हमारे शरीर में 206 हड्डियां है, वो 206 हड्डियां इससे प्रभावित होती है। थोड़ा सा आगे पीछे भी चले, 2-3 स्टेप आगे और 2-3 स्टेप पीछे। समय कम होने से एक ही राउंड लगा लेते हैं। आइए वापिस, दोनों हथेलियां माथे पर और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से तानते हुए आइए धीरे धीरे वापिस। खड़े स्थिति में विश्राम। और एक आसन हम करेंगे खड़े स्थिति में, उसका नाम है अर्ध चक्रासन। हमारे शरीर की स्थिति अर्ध चक्र जैसी बन जाती है इस आसन में, इसलिए इसका नाम है अर्ध चक्रासन। उसके लिए आसन पर खड़े हो जाए, दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर, अच्छा दोनों हाथ कमर पर रखे, चारों अंगुलें सामने, अंगूठे पीछे से मिले हुए। सांस भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे की तरफ झुकाए। पैर से कमर तक का भाग एकदम सीधा रखे। सिर्फ कमर से ऊपर का भाग ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ बेंड करने का प्रयास करें। जितना कर सकते हैं उससे 5% एक्स्ट्रा, उससे ज्यादा नहीं। स्थिति बनने पर सांस सामान्य,
ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। देखिए हमारे फेफड़े के ऊपर कैसे प्रभाव आ रहा है। फेफड़े इससे प्रभावित होते हैं, फेफड़े की कार्य क्षमता बढ़ती है। बहुत ही सिंपल आसन है, इससे रीढ़ का दोष भी चला जाता है। आइए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापिस खड़े स्थिति में विश्राम। अभी आसन पर बैठ जाए। अभी खड़े स्थिति में हमने 2 आसन किए, अभी बैठे स्थिति में कुछ आसन करेंगे। बैठे स्थिति में पहला आसन हम करने कोणासन। कोणासन के लिए एड़ी पंजे मिला ले, दोनों हाथ घुटनों पर, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। अभी दोनों हाथ कमर के पीछे लेके जाए, अंगुलियां बाहर की तरफ रखे, ऐसी बाहर की तरफ रखे, दोनों हाथ नजदीक से नजदीक, और सांस भरते हुए उठाए पूरे शरीर को ऊपर उठाए। देखिए हमारे पंजे से सिर तक पूरा शरीर एक लाइन में लेके आए और गर्दन पीछे की तरफ झुका दे। पूरा भार हमारे दोनों हाथों पर और एड़ियों पर। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। इस स्थिति में पेट के अंतर्गत सभी अंग, नाभि के आसपास के अंग, जिगर, तिलिया, आमाशय, उसके ऊपर अच्छा प्रभाव। हाथों पर प्रभाव आने से हाथों की मांसपेशियां पुष्ट होती है। रीढ़, सर्वाइकल और स्लिप डिस्क के दोष भी इससे चले जाते हैं। बहुत ही गुणकारी आसन है कोणासन। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आइए वापिस और विश्राम। दूसरा आसन करेंगे वज्रासन। एड़ी पंजे मिला ले, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। अभी दोनों हाथ राइट साइड आसन पर रखे और दोनों पैर लेफ्ट साइड से मुड़े लेफ्ट साइड से, और आइए वज्रासन में। वज्रासन में बैठते समय दोनों एड़ियों के बीच बैठना है। दोनों एड़ियों में ज्यादा से ज्यादा अंतर, उसके बीच बैठना है। दोनों हाथ घुटनों पर एकदम स्ट्रेट, कमर गर्दन एकदम सीधी। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर रखे, आंखें बंद रखे। वज्रासन ये आसन हम कभी भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, पेपर पढ़ते समय, टीवी देखते समय, खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद। खाना खाने के पहले किया तो भूख अच्छी तरह से लगती है, खाना खाने के बाद किया तो खाया हुआ अन्न अच्छी तरह से हजम होता है। इसलिए हर दिन खाना खाने के बाद जरूर कम से कम 5 मिनट वज्रासन में बैठे, हमारे पाचन संबंधी सभी विकार चले जाएंगे। आप सबको पता है 80% विकार ये हमारे पेट से होते हैं, पाचन संबंधी होते हैं। तो वज्रासन में हर दिन बैठा करें तो बिल्कुल ये विकार आपको नहीं होंगे और इससे आप बच जाएंगे। इस आसन में हमारा शरीर का पूरा वेट पिंडलियों पर आने से वहां का अशुद्ध रक्त गर्म होकर हृदय की तरफ जाता है। वेरिकोस वेन्स का दोष इससे चला जाता है। वज्र नाड़ी प्रभावित होती है। बहुत ही बड़ी आसन है। चलो आइए वापिस वज्रासन में बैठे। यही स्थिति में अगला आसन हम करने जा रहे हैं, उसका नाम है उष्ट्रासन। उष्ट बोले तो उंट, हमारे शरीर की स्थिति उंट जैसी थोड़ी सी बनती है इस आसन में, इसलिए इसका नाम उष्ट्रासन रखा गया है। कैसे करना है मैं विधि बताता हूं और हमारे जो योग टीचर है उनकी तरफ देखते हुए आप जरूर करें। वज्रासन ये पूर्व स्थिति है। दोनों घुटनों पर खड़े हो जाए। दोनों घुटनों में कंधों जितना फासला ले, 1 से 1.25 फीट। अभी दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे पीछे की साइड, चारों अंगुलियां सामने, और धीरे धीरे पीछे की तरफ झुके। जितना झुक सकते उतना झुके, हाथ ना छोड़े। देखिए हमारे शरीर की जो अवस्था है कैसी बेंड हो गई विपरीत दिशा में। दिन भर हम ज्यादा से ज्यादा सामने झुककर काम करते हैं, इसलिए हमारे पीठ रीढ़ पर बहुत ही विपरीत परिणाम होता है। उसको निकालने के लिए ये आसन है उष्ट्रासन। और हमारे फेफड़े, देखिए हमारे फेफड़े इससे प्रभावित हो रहे हैं। फेफड़ों के ऊपर भी बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए वो प्राणवायु लेने की क्षमता इससे बढ़ती है। ये हुआ अर्ध उष्ट्रासन। अभी जिन्हें संभव है वो अपना दाया हाथ निकलकर दाएं तलवे पर रखे, बाया हाथ निकलकर बाएं तलवे पर रखे। ये हुआ पूर्ण उष्ट्रासन की स्थिति। जिन्हें संभव है वही ये स्थिति करे, जिन्हें संभव नहीं है वो अर्ध उष्ट्रासन में रहे। इससे देखिए हमारे फेफड़ों के ऊपर कैसी प्रभाव पड़ रहा है। फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है, इसलिए हमारे शरीर में अच्छी तरह से हम ऑक्सीजन ले सकते हैं। रीढ़, सर्वाइकल का भी दोष चला जाता है। आइए धीरे धीरे वापिस
वज्रासन में। अभी ये कुछ हुए बैठे स्थिति में आसन। अभी आगे के कुछ आसन में पेट के बल लेने वाला हूं। तो आपको देखने के लिए पहले आप क्या करें, आप डेमो देखें और उसके बाद फिर हम एक साथ करेंगे। तो डेमो पहले मैं दिखाता हूं, पेट के बल और पीठ के बल वाला, फिर बाद में हम सब करेंगे। तो पहले डेमो देखें, आसन पर पेट के बल लेट जाए, एड़ी पंजे मिला ले। पेट के बल हम जो आसन करेंगे, इस आसन का नाम है भुजंगासन। हमारे शरीर की स्थिति भुजंग जैसी बनती है इस आसन में, इसलिए इसका नाम है भुजंगासन। तो ये एड़ी पंजे मिला ले, दोनों हाथ शरीर को सटा ले, दो माथा जमीन पर लगा दे। अभी दोनों हाथ कोनियों से मुड़ते हुए दोनों हथेलियां शरीर के आजू बाजू लेके आए, हाथों की कोनियां हमारे शरीर के नजदीक रखे। अभी पहले गर्दन को ऊपर उठाए और सांस भरते हुए धीरे धीरे पूरे धड़ को ऊपर उठाए पूरे धड़ को, और हाथ नाम मात्र जमीन से ऊपर लेके आए। हाथों पर कुछ भी भार ना हो, हाथों पर कुछ भी भार ना हो, इस स्थिति बनाए। आंखें बंद, पीछे से दोनों पैर मिला के रखे, पैरों में अंतर नहीं। देखिए हमारे फेफड़ों के ऊपर कैसे प्रभाव आ रहा है, रीढ़ के ऊपर हमारा मेरुदंड है उसके ऊपर प्रभाव आ रहा है। हमारे पेट फेफड़े वहां के सभी विकार चले जाते हैं। महिलाओं की मासिक धर्म की जो तकलीफ है वो भी ये आसन करने से कम होती है। चेहरे पे स्माइल रखे। आइए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस। अभी पीठ के बल वाला आसन हम करेंगे। राइट तरफ से टर्न होते हुए पीठ के बल आ जाए। हम पीठ के बल वाले दो आसन आज करेंगे। पहले करेंगे कंधरासन और उसके बाद करेंगे पवन मुक्तासन। कंधरासन या सेतु बंधासन या ब्रिज पोज, ये अलग अलग नाम है। इस स्थिति में हमारे आसन की स्थिति ब्रिज जैसी बन जाती है और फेफड़ों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव आता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए एड़ी पंजे मिला ले। अभी दोनों पैर घुटनों से मुड़ते हुए दोनों पैर की एड़ियां नितंब के पास लेके आए। अभी दोनों हाथों से दोनों पैर के टखने पकड़े और सांस भरते हुए अपने नितंब और धड़ को ऊपर उठाए, लेकिन गर्दन और कंधे जमीन पर ही रखे। गर्दन और कंधे जमीन पर ही रखे, सिर्फ बीच में का पार्ट ऊपर उठाए। देखिए हमारी ब्रिज जैसा पोज इसमें बन गई है, इसलिए इसका नाम है सेतु बंधासन या ब्रिज पोज या कंधरासन। देखिए हमारे फेफड़ों के ऊपर कैसे प्रभाव आ रहा है। कमर के जो स्नायु है, रीढ़ है, उसके ऊपर भी कैसे प्रभाव आ रहा है वो देखने का प्रयास करें। हमारे शरीर की कार्य क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। आइए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस दोनों पैर सीधे करें। और एक आसन हम करेंगे पीठ बल वाला, उसका नाम है पवन मुक्तासन। क्या होता है, हमारे शरीर में हम जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, जो सांस छोड़ते हैं, जो हम सांस छोड़ते हैं वो शुद्ध हवा नहीं रहती है, अशुद्ध जो हवा है वो हम छोड़ते हैं। लेकिन बहुत बार जो कुछ अशुद्ध वायु तत्व है हमारे नस नाड़ियों में अटके हुए रहते हैं, वो साधारण प्रश्वास से नहीं निकलते हैं। उसके लिए एक पवन मुक्तासन है। हमारे शरीर में नस नाड़ियों में जो अशुद्ध हवा या विषारी तत्व हमारी हवा अटके के बैठी है वो निकालने के लिए ये आसन है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन की पहली कड़ी, राइट पैर 90 डिग्री ऊपर उठाए, घुटनों से मोड़े, दोनों हाथों से पकड़े और सांस भरते हुए घुटना छाती की तरफ दबाए। गर्दन ना उठाए, गर्दन नीचे रहेंगे। सांस रोके और सांस छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर उठाए और अपना नासा मार्ग देखिए घुटनों को लगाने का प्रयास। नासा मार्ग यहाँ घुटनों को लगाए, लेफ्ट पैर सीधा। आइए सांस छोड़ते हुए पहले गर्दन को नीचे लेके आए, फिर राइट पैर 90 डिग्री ऊपर, राइट पैर सीधा। अब यही क्रिया हम लेफ्ट पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर 90 डिग्री ऊपर, घुटनों से मोड़े, दोनों हाथों से पकड़े, सांस भरते हुए लेफ्ट पैर का घुटना छाती के ऊपर दबाए,
सांस रोके, सहन न होते हुए और सांस छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर उठाए और अपना नासाग्र लेफ्ट घुटने को लगाने का प्रयास। राइट पैर आसन पर तना हुआ, कुछ क्षण इस स्थिति में रुके, ध्यान मणिपुर चक्र पर। सांस छोड़ते हुए गर्दन पहले नीचे लेके आए, फिर लेफ्ट पैर 90 डिग्री ऊपर, लेफ्ट पैर सीधा। तीसरी और आखिरी कड़ी, दोनों पैर एक साथ 90 डिग्री ऊपर उठाए, घुटनों से मोड़े, दोनों हाथों से पकड़े, सांस भरते हुए छाती की तरफ दबाए, सांस रोके, सहन न होते हुए सांस छोड़ते हुए गर्दन ऊपर उठाए और अपनी गर्दन दोनों घुटने के बीच लाने का प्रयास करें। और इस स्थिति में आप डोल भी सकते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं डोलते रहे। दाएं बाएं भी डोले, इससे हमारे पीठ की अच्छी तरह से मसाज होती है। हमारे जो शरीर में हर एक नस नाड़ियों में जो अशुद्ध हवा है वो सब निकल जाती है और जब अशुद्ध तत्व शरीर से बाहर जाते हैं तो हम रोग मुक्त होते हैं। आइए वापिस, दोनों पैर ऊपर और सीधे करें। ठीक है, चलो अभी हम सब करेंगे एक साथ। पहले हम करेंगे भुजंगासन, तो सभी आप पेट के बल लेटे, सबने करना है हमारे साथ, तभी आपको उसका प्रभाव समझ में आएगा। आप देखते रहेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, साथ में करेंगे तो उसका जो प्रभाव है, उसका जो इफेक्ट है वो हमें समझ में आएगा। तो पेट के बल लेटे, एड़ी पंजे मिलाए। अभी दोनों हाथ घुटनों से मुड़ते हुए अपने कोहनियां शरीर के नजदीक लेके आए, दोनों हाथों की कोहनियां शरीर के ज्यादा से ज्यादा नजदीक, माथा जमीन पर। अभी सांस भरते हुए पहले गर्दन को ऊपर उठाए और सांस भरते हुए पूरा धड़ ऊपर उठाए, जितना उठा सकते उतना उठाए। और उसके बाद दोनों हाथ जमीन से आधा इंच ऊपर उठाए, हाथों पर कुछ भी भार नहीं, पूरी भार हमारे रीढ़ पर प्रभाव आने से ही हमारे फेफड़े फूलते हैं और फेफड़े की कार्य क्षमता इससे बढ़ती है। इसलिए अच्छी तरह से हम प्राणवायु ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे रीढ़ सर्वाइकल के भी दोष इसमें चले जाते हैं। पेट की जो मांसपेशियां है वो भी प्रभावित होती है, वेट लॉस इससे भी होता है और महिलाओं के लिए मासिक धर्म की जो तकलीफ है वो इससे कम होती है, वो निकल जाती है। तो उन्होंने भी वो जरूर करना चाहिए, बहुत ही प्रभावशाली है। आइए वापिस, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आइए वापिस, दोनों हाथ सीधे। अभी राइट तरफ टर्न होते हुए अपने पीठ के बल आ जाए। कभी भी टर्न होते हुए राइट की तरफ से होना ये ध्यान में रखे, लेफ्ट तरफ से नहीं होना है, क्योंकि लेफ्ट तरफ हमारा हृदय है, हार्ट है, हार्ट के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए, इसके लिए राइट तरफ से टर्न होना कभी भी उचित है। तो अभी पीठ के बल वाले 2 आसन हम करेंगे। पहले करेंगे हम सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए एड़ी पंजे मिलाए, दोनों हाथ शरीर को सटा ले। अभी दोनों पैर घुटनों से मुड़ते हुए दोनों पैर की एड़ियां नितंब के पास लेके आए, दोनों हाथों से दोनों पैर के टखने पकड़े और अपना नितंब और फेफड़े उसको ऊपर उठाए, बीच में का भाग, कंधे और गर्दन जमीन पर ही रखे। स्थिति बनने पर सांस सामान्य और कुछ क्षण इस स्थिति में रुकने का प्रयास। देखिए हमारे फेफड़े के ऊपर कैसे प्रभाव आ रहा है। इसके साथ साथ हाथ पैर की नस नाड़ियां भी प्रभावित हो रही है, पेट के अंतर्गत की भी सभी प्रणाली इससे प्रभावित हो रही है, गर्दन और वहां के आसपास के मांसपेशियों पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। खास करके फेफड़े प्रभावित होने से उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, ये ध्यान में रखें। आइए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस दोनों पैर सीधे करें। अभी पीठ के बल वाला आखिरी आसन पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए एड़ी पंजे मिलाए, दोनों हाथ शरीर को सटा ले। पवन मुक्तासन की पहली कड़ी, राइट पैर 90 डिग्री ऊपर उठाए, घुटनों से मोड़े, दोनों हाथों से पकड़े और सांस भरते हुए छाती की तरफ दबाए, गर्दन ऊपर ना उठाए, सिर्फ छाती की तरफ दबाए। कुछ क्षण रुके, सहन न होते हुए और सांस छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर उठाए और अपना नासा मार्ग राइट घुटने को लगाने का प्रयास करें। जितना नासाग्रह राइट घुटने को लगता है उनकी तबियत अच्छी है और जिनका नहीं लगता है
कुछ तो अपने शरीर में प्रॉब्लम है। एक सिंपल टेस्ट योगा में है। चलो आइए, हाथ छोड़ते हुए पहले गर्दन को नीचे लेके आए, राइट पैर 90 डिग्री ऊपर, राइट पैर सीधा। यही क्रिया लेफ्ट पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर सांस भरते हुए ऊपर उठाए, घुटनों से मोड़े, दोनों हाथों से पकड़े, सांस भरते हुए घुटना छाती की तरफ दबाए, सांस रोके, सांस छोड़ते हुए फिर गर्दन को ऊपर उठाए, नासाग्र अपने लेफ्ट घुटने को लगाने का प्रयास। राइट पैर आसन पर सीधा रखे, साधारण सांस चालू रखे। जितना नासाग्र लेफ्ट घुटने को लगता है उनकी तबियत, उनका शरीर ठीक है ऐसा हम समझते हैं। जिनका नहीं लगता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गए, ये आपको अलार्म है। बहुत सिंपल टेस्ट है। सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेके आए, लेफ्ट पैर 90 डिग्री ऊपर, लेफ्ट पैर सीधा। आखिरी कड़ी, दोनों पैर एक साथ, सांस भरते हुए दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाए, घुटनों से मोड़े, दोनों हाथों से घुटने पकड़े, सांस भरते हुए दोनों घुटने छाती के ऊपर दबाए, दबाए जोर से, तभी हमारे नस नाड़ियों की जो अशुद्ध हवा है वो बाहर निकल जाएंगे। कुछ क्षण रुके, सहन न होते हुए और सांस छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर उठाए और अपनी नासाग्र दोनों घुटनों के बीच लाने का प्रयास। कुछ क्षण इस स्थिति में रुके, ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। और इस स्थिति में आप डोल भी सकते हैं आगे पीछे। इससे हमारी पीठ की अच्छी तरह से मसाज होती है। जो अशुद्ध वायु है वो जल्दी निकल जाती है। वैसा दाएं बाएं भी करे, दाएं बाएं। आइए वापिस, दोनों पैर सीधे करें। इस स्थिति में हम कुछ क्षण अभी शवासन, आसन करने के बाद शवासन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर के अलग अलग भाग पर उसका तनाव और दबाव महसूस होता है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए ये आसन प्रभावशाली है। तो कैसे करना है मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं, वैसा आप करते जाए। पहले दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर ले, दोनों हाथ शरीर के आजू बाजू आधा से पौना फीट, हथेली का रुख ऊपर की तरफ रखे और मन की आंखों से पूरे शरीर की यात्रा करें। राइट पैर के नाखून से सिर की चोटी तक, सिर की चोटी से लेफ्ट पैर के नाखून तक अपना ध्यान लेके जाए और मन की आंखों से पूरे शरीर की यात्रा करें। राइट पैर के नाखून से सिर की चोटी तक, सिर की चोटी से लेफ्ट पैर के नाखून तक लेके जाके उसको ढीला छोड़े और इसी तरह धीरे धीरे पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़े, कहां भी तनाव नहीं। और इस स्थिति में विश्राम। शवासन करने से शरीर के संपूर्ण अंग शिथिल हो जाते हैं, इंद्रिया अंतर्मुखी हो जाती है, मन शांत होता है। यह आसन स्थिरता और सुख ये दोनों अवस्था ग्रहण करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। शवासन में थकान दूर होती है, शरीर के संपूर्ण अंग रक्त से पोषित होते हैं, कार्य करने के लिए शक्ति संग्रह होता है, मन एवं मस्तिष्क में के जो खिंचाव है वो भी दूर होते हैं। शवासन जो है वो हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, वो मानसिक रोगियों के लिए ये रामबाण है, ये ध्यान में रखें। आइए वापिस, एड़ी पंजे मिला ले, दोनों हाथ शरीर को सटा ले और राइट तरफ टर्न होते हुए राइट करवट पे 2 क्षण रुके। एकदम नहीं उठना है, थोड़ा सा रुक के उठना है। राइट कोहनी का सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे आसन पर बैठे। अभी हम करने वाले हैं सिंहासन।
सिंह जैसी हमारे शरीर की स्थिति बनाते हुए सिंह जैसी एक मधुर स्वर निकालना है। इससे भी हमारा जो नासामार्ग है, गला है, एक गले के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। कोरोना के जो वायरस है, विषाणु है, वो हमारे नाक से गले में जाते हैं, फिर फेफड़े में जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए भी ये क्रिया बहुत गुणकारी है। कैसे करना है मैं विधि बताता हूं, हमारे साथ सब करें। पहले पद्मासन में बैठे, जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो पेट के बल लेटे। अभी दोनों घुटनों को बल खड़े होकर आगे आए, दोनों हथेली आपस में मिला ले, अंगुलियां अंदर की साइड रखे, कमर नीचे, गर्दन आगे और गर्दन को ज्यादा से ज्यादा पीछे, जीवा को बाहर निकाले, ध्यान दोनों नासाग्र पर रखे, पूरा ध्यान अपने दोनों नासाग्र कर जीवा ज्यादा से ज्यादा बाहर निकाले और मधुर स्वर में 3 बार सिंहासन करे, सिंह गर्जना करे। पेड़ू को पिचकाए और धीरे धीरे आइए वापिस आसन पर बैठे। गले की हल्की सी मसाज करे, सामने से, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से अच्छी तरह से मसाज करे। मसाज करने से गले के जो स्नायु है, नस नाड़ी है, उसके ऊपर प्रभाव अच्छा होता है। अभी जो सिंहासन हमने किया है मधुर स्वर में, उससे हमारे गले के सभी दोष चले जाते हैं, जैसे टॉन्सिल, हकलाना, ये भी दोष चला जाता है। आवाज में बुलंदी आती है, आंख, नाक, कान, ये तीनों दोष भी इससे चले जाते हैं। ईएनटी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मन शांत होता है, वीर्य सुरक्षा भी इससे होती है। बहुत ही बढ़िया आसन है सिंहासन। अभी हम आगे का जो आसन करने जा रहे हैं उसका नाम है हंसना, हंसी। अभी आपको मैं बताने वाला हूं कि जो समाज में तनाव आया है, आप सबको पता है, छोटे बच्चों से बूढ़े तक सबको तनाव आता है और वो तनाव में हम आजकल ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। जब हम एक 30, 40, 50 साल पीछे गए तो तब ये तनाव नहीं था, ये अभी ज्यादा से ज्यादा आया है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जब हम तनाव में रहते हैं तब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, बहुत ही फास्ट कम हो जाती है, रोग प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है। और हमारा जब हम पॉजिटिव रहते हैं, तनाव रहित रहते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। हम जब छोटे थे तब हम करीबन 300 से 400 बार हंसते थे, लेकिन बड़े होने के बाद हमारी हंसी इतनी कम हो गई, हम दिन में 8 से 10 बार भी नहीं हंसते। और यही एक कारण है हम तनाव में रहने का। तनाव से मुक्त पाना है तो हंसते रहे, हंसाते रहे, तभी आप तनाव से मुक्त रहेंगे। और ज्यादा दिन में ज्यादा से ज्यादा बार हंसना है, तभी हम इससे दूर रखते हैं। तो ये आकाशाची कैसे करना है उसका विधि मैं बताता हूं। दोनों हाथ कमर के पीछे लेके जाए, थोड़ा सा सामने की तरफ झुके और बड़ी मस्ती से हंसना चालू करे। हंसते रहे। और एक बार आइए वापिस, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। यही हंसी का भाव दिन भर रखे, खुद हंसे, दूसरों को हंसाते रहे, तनाव मुक्त रहे, आनंदी रहे, सुखी रहे, कोरोना से दूर रहे। हंसते रहेंगे तो कोरोना भी आपके पास नहीं आएगा, ये मैं बिल्कुल कह सकता हूं। क्योंकि जब हम सकारात्मक रहते हैं, अच्छा सोचते हैं, तभी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और इम्यूनिटी बढ़ने के बाद आपको भी पता है कौन से भी विषाणु हमें अटैक नहीं कर सकते। आइए वापिस,
अभी ये हो गया पहला भाग, आसन। अभी हम दूसरे भाग की तरफ जाएंगे, प्राणायाम। तो प्राणायाम कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। प्राणायाम के लिए पहले पूर्व स्थिति, दोनों पैर ऐसे फैला ले और कौन से भी ध्यानात्मक आसन में बैठते। पद्मासन है सबसे बढ़िया ध्यानात्मक आसन है। उसकी विधि मैं आपको बताता हूं। राइट पैर घुटनों से मुड़ते हुए लेफ्ट जंघा के पास रखे, उसी तरह लेफ्ट पैर घुटनों से मुड़ते हुए राइट जंघा के पास रखे। दोनों एड़ियों में कम से कम फासला, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, ऐसा तर्जनी और अंगूठा का अग्रभाग एक दूसरे को टच करके थोड़ा सा दबा के रखे, ज्यादा नहीं। और दोनों कलियां घुटनों पर, तीनों अंगुलियों का रुख जमीन की तरफ, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, कंधे तनाव रहित और चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। ये हुई पूर्व स्थिति प्राणायाम करने के लिए। प्राणायाम यानी प्राण का आयाम। जो प्राणवायु हम शरीर में लेते हैं उसका सही ढंग से हमने लिया तो हमारा प्राणवायु जो श्वासोच्छ्वास हम करते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो सही ढंग से लिया तो जो प्राणवायु सांस के साथ जो जाता है उसकी मात्रा अधिक इसमें जाती है और वो ऑक्सीजन की हमारे शरीर को जरूरत होती है। अभी कई दिनों से हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन इतनी बार सुन रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन हम शरीर में ही क्रिएट कर सकते हैं, बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने जो हमें शरीर दिया है ये प्रकृति है, इससे हमें सब मिलता है। लेकिन हम जो हमारी जीवन शैली इतनी बिगाड़ के रखी है तो हम उतना ऑक्सीजन ही हमारे शरीर को दे नहीं पाते, हवा से ले नहीं पाते जो फ्री में मिलता है। वो बढ़ाने के लिए प्राणायाम बहुत ही गुणकारी है, ये ध्यान में रखे। इसके लिए प्राणायाम हर दिन जरूर करें। अभी जो कोरोना के लिए जो प्राणायाम आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं, आज 3 ही प्राणायाम लेंगे, सभी तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये तीनों किया तो भी निश्चित स्वरूप से आप अपनी फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ते हैं और जो प्राणवायु है वो ज्यादा मात्रा में आप निश्चित स्वरूप से ले सकते हैं। तो पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम, दूसरा प्राणायाम है कपालभाति और तीसरा प्राणायाम है भस्त्रिका। ये तीनों प्राणायाम आज हम आपको एक साथ करेंगे। तो पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो सांस लेते हैं हम उसके और सांस छोड़ते हैं वो सही ढंग से हमने लेना है और छोड़ना है। सांस लेते हैं उसे पूरक कहा जाता है और सांस छोड़ते हैं उसे रेचक। एक पूरक और रेचक ये जो क्रिया इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए तैयार हो जाए। दोनों हाथ घुटनों पर, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में बाएं घुटने पर, दायां हाथ ऊपर करें। पहली 2 अंगुलियां तर्जनी और मध्यमा मोड़ते हुए अंगूठे के गद्दी पर रखें। फिर राइट हैंड चेहरे के सामने लेके आए, अंगूठे से राइट नासिका हल्की सी बंद करें। अभी लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे सांस भरे, गहरी सांस भरे। अभी अनामिका से लेफ्ट नासिका बंद करें, राइट नासिका से सांस बाहर। अभी राइट नासिका से धीरे धीरे सांस भरे, राइट नासिका बंद करें, लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे सांस बाहर। ये हुआ एक राउंड। ऐसे हमें कम से आज 10 राउंड करेंगे, यहाँ समय कम है, घर पे आपको ज्यादा करना है, 20, 30, 40 राउंड तक जरूर करना है। 5 से 7 मिनट कम से कम एक एक प्राणायाम करना है। अभी जब हम पहले लेफ्ट नासिका से सांस लेते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी जो लेफ्ट नासिका है ये चंद्र नाड़ी है, राइट नासिका ये सूर्य नाड़ी है। चंद्र नाड़ी या इसको ईड़ा नाड़ी भी बोलते हैं। जब हम लेफ्ट नासिका से सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ठंडक शीतलता पैदा होती है, इसलिए इसका नाम है चंद्र नाड़ी। और जब हम राइट नासिका से सांस लेते हैं उससे हमारे शरीर में गर्मी उष्णता पैदा होती है, इसलिए उसका नाम है सूर्य नाड़ी। और ये दोनों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, वो सुषुम्ना नाड़ी भी, वो दोनों हम अच्छी तरह से श्वास प्रश्वास करते हैं तो वो भी प्रभावित हो जाती है। तो इससे
इसलिए ये प्राणायाम करने से हमारे शरीर में गर्मी और शीतलता वो दोनों अच्छी तरह से सम होती है और हम कौन से भी विकार मुक्त हो जाते हैं। प्राणवायु हमारे शरीर में अच्छी तरह से जाके हर एक नस नाड़ियों तक वो पहुंचता है। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही गुणकारी है मन शांत करने के लिए, प्राणवायु हमारे पूरे शरीर में अच्छी तरह से पहुंचने के लिए। तो चलिए अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करेंगे। राइट नासिका अंगूठे से बंद करें, लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे सांस भरे, अनामिका से लेफ्ट नासिका बंद, राइट से बाहर। अभी राइट से धीरे धीरे गहरी सांस भरे, राइट नासिका बंद, लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे बाहर। ये हुआ एक राउंड। ऐसे 10 राउंड करें अपनी गति के साथ। लेफ्ट नासिका से सांस भरे, लेफ्ट नासिका बंद, राइट से छोड़े, राइट से भरे, राइट नासिका बंद, लेफ्ट से छोड़े। करते रहे, अपने गति के साथ करें। सांस इतना सूक्ष्म हो कि उसकी खुद को भी आवाज ना आए। पूरा ध्यान अपने शरीर के अंदर। अभी यही प्राणायाम गिनती के साथ करें। गिनती के साथ करने का मतलब यही होता है जितना समय हम सांस लेने में लगाते हो उतने ही समय में सांस को बाहर छोड़े, तो उससे भी और ज्यादा प्रभाव हमारे शरीर पर अच्छी तरह से पड़ता है। तो अभी गिनती के साथ हम लेंगे। सांस लेफ्ट नासिका से भरे, 2 3 4 5, लेफ्ट नासिका बंद, राइट से छोड़े, 2 3 4 5, राइट नासिका से भरे, 2 3 4 5, राइट नासिका बंद, लेफ्ट से छोड़े, 2 3 4 5। और 4 राउंड अपने गिनती के साथ करें सब। रुके नहीं, करते रहे। और अनुभव करें हमारे शरीर में प्राणवायु की मात्रा कैसी बढ़ गई है, वो भी हमें समझ में जरूर आएगा। यहाँ समय कम होने से हम कम ही राउंड ले रहे, घर पे वो ज्यादा करे और उसका भी अनुभव अच्छी तरह से करे। ये राउंड समाप्त होने पर आइए वापिस। दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद ही रखे और किए हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम की अनुभूति करें कुछ क्षण। अपने शरीर के अंदर देखे ऊर्जा कैसी बढ़ गई है, प्राणवायु कैसे बढ़ गया है, वो देखने का प्रयास करें। आइए वापिस। अभी हम करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। कपाल यानी मस्तिष्क, भाती यानी चमकना। इस प्राणायाम से हमारी जो मस्तिष्क है उसके अंदर के सेल है वो उसके ऊपर भी बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और हमारे फेफड़े, गला, उसके ऊपर भी नासा मार्ग वो भी अच्छी तरह से क्लियर होता है। उसके अंदर जो भी विषाणु है, कोरोना के हो या बाकी कौन से भी हो, वो चले जाते हैं। इससे हमारे तीनों वात, पित्त, कफ ये भी सम होता है, सभी विकार इससे चले जाते हैं। तो कैसे करना है मैं विधि एक राउंड आपको बताता हूं, बाद में सब करें। जिन्हें हृदय रोग है, हृदय रोगी ये
प्राणायाम ना करें, उच्च रक्तचाप वाले, दमा वाले कुंभक ना करें, सांस ना रोके, बाकी सब कर सकते हैं। उसके लिए पहले दोनों हाथ घुटनों पर लॉक रखें, कमर गर्दन सीधी। पहले पूरी सांस को बाहर छोड़े धीरे धीरे, फिर सांस को अंदर भरे, पूरी सांस भरने पर मूलबंध लगाए और आंतरिक कुंभक में शक्ति से सांस को बारंबार बाहर छोड़े। समझ में आया? ऐसे स्ट्रोक करना है आपको, शक्ति से सिर्फ बाहर छोड़ना है, सांस लेना नहीं है। ऑटोमेटिक थोड़ी बहुत जो जाती हो जाने दे, लेकिन सिर्फ सांस को आपको बारंबार शक्ति से बाहर छोड़ना है। इससे हमारे नासा मार्ग में जितने भी विषाणु है सब कुछ वो चले जाते हैं और फेफड़ों की भी कार्य क्षमता अच्छी बढ़ती है। तो एक साथ अभी कपालभाति प्राणायाम करें। एक स्ट्रोक में हम 10 स्ट्रोक लगा सकते हैं, 15, 20, तुम्हारी जितनी कैपेसिटी उतनी लगाए। और कुछ दिनों के बाद जब प्रैक्टिस होगी तब 40, 50, 100 तक भी आप जा सकते हैं। तो अभी आपको प्रैक्टिस नहीं तो कम स्ट्रोक है तो कोई बात नहीं है। तो एक साथ कपालभाति प्राणायाम के लिए दोनों हाथ घुटनों पर लॉक, पहले पूरी सांस को बाहर छोड़े, धीरे धीरे सांस को भरे, मूलबंध लगाए और शक्ति से सांस को बारंबार बाहर छोड़े। और इसमें अपना पेट भी पिचकाना है, नाभि को पीछे की तरफ लेके जाना है, ये ध्यान में रखें। सहन न होते हुए आइए वापिस। ये हुआ एक राउंड, ऐसे 2 राउंड आज करेंगे सिर्फ यहाँ। घर पे कम से कम 8 से 10 राउंड करें। सांस छोड़े, सांस भरे, मूलबंध लगाए और शक्ति से बारंबार सांस को बाहर छोड़े। अपना शरीर और कंधे बिल्कुल ना हिलाए। चेहरा और नासाग्र मार्ग कभी आधा टेढ़ा ना करे, बिल्कुल सिंपल करना है। नाभि को ज्यादा से ज्यादा रीढ़ की तरफ लेके जाना है जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं। सहन न होते हुए आइए वापिस। आखिरी कड़ी, सांस छोड़े, सांस भरे, मूलबंध लगाए और शक्ति से बारंबार सांस को बाहर छोड़े। अपने पेड़ू को भी अच्छी तरह से पिचकाए, नाभि को रीढ़ की तरफ लेके जाए जब हम सांस छोड़ते हैं तब। आइए वापिस, आंखें बंदी रखे। अभी दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखे, कमर गर्दन सीधी और पूरा ध्यान अपने शरीर के अंदर लेके जाए। और देखिए, एक कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है। वात पित्त कफ ये भी इससे प्रभावित होता है, कम हो जाते हैं। श्वसन नलिका, श्वसन तंत्र पर भी इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन लेने की क्षमता खास करके इससे बढ़ती है। बाहर से हॉस्पिटल से ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सब प्लांट हमारे शरीर में यही सब कुछ दिया है, सिर्फ उसका अच्छी तरह से जीवन शैली बदलकर हमें प्रभावित करना है। कभी भी अपना ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगा, ये ध्यान में रखें। और आज जो बाहर परिस्थिति तैयार हुई है, सब तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कमी है, वो बिल्कुल नहीं आएंगी यदि आप हर दिन 1 घंटा खुद को देंगे, योगाभ्यास प्राणायाम ध्यान करोगे, तो निश्चित रूप से आपको किसी भी बाहर से जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए वापिस, अभी आज का आखिरी प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है पहले मैं आपको बताता हूं, बाद में हम करें। भस्त्रिका प्राणायाम भी हमें उच्च रक्तचाप वाले और हृदय रोगी ना करे, उनके लिए ये वर्जित है। वो सिर्फ अनुलोम विलोम करे, बाकी सब कर सकते हैं। अभी किसका तो माइक अनम्यूट हुआ है, कृपा करके म्यूट करें माइक को। निकित, म्यूट योरसेल्फ। हाँ, अभी हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। मैं एक कड़ी कैसी करना है आपको बताता हूं। अपना लेफ्ट हैंड लेफ्ट घुटनों पर लॉक करे, राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा। अभी अनामिका से लेफ्ट नासिका बंद करे, राइट नासिका से शक्ति से सांस ले और शक्ति से छोड़े। ऐसा 10 बार करेंगे। तो कैसे करना मैं दिखाता हूं, पहले आप देखें, बाद में फिर हम साथ में करेंगे। अभी राइट नासिका से शक्ति से सांस लेना है और शक्ति से छोड़ना है। मैं दिखाता हूं। समझ में आया? या ऐसे 10 राउंड करना है राइट नासिका से, फिर 10 राउंड लेफ्ट नासिका से दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी में लेफ्ट से लेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, और आखिरी कड़ी में दोनों नासिका से एक साथ करेंगे। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम भी हमारी फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। फेफड़ों में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो अच्छी तरह से बढ़ जाती है, उसका शोधन भी अच्छी तरह से होता है। 7 चक्र इससे प्रभावित होते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। ये 7 चक्र इससे प्रभावित होते हैं। तो दोनों लेफ्ट हैंड लेफ्ट घुटनों पर लॉक करे, राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा, अनामिका से लेफ्ट नासिका बंद करे, मूलबंद लगा के रखे, और राइट नासिका से शक्ति से सांस भरे और शक्ति से छोड़े। ऐसा 10 बार करे। 10 बार होने के बाद फिर राइट से लेना, आंतरिक कुंभक तीनों बंद, लेफ्ट से छोड़ना, बाह्य कुंभक तीनों बंद। चलो एक साथ भस्त्रिका प्राणायाम की पहली कड़ी मेरे साथ शुरू करें। आइए वापिस। अभी राइट नासिका से धीरे धीरे सांस भरे, राइट नासिका बंद, आंतरिक कुंभक तीनों बंद। सहन न होते हुए तीनों बंद क्रमानुसार खोले। लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे सांस बाहर, लेफ्ट नासिका भी हल्की सी बंद करे, बाह्य कुंभक तीनों बंद। सहन न होते हुए आइए वापिस। ये हुई एक कड़ी। अभी दूसरी कड़ी लेफ्ट नासिका से, राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठे से राइट नासिका हल्की सी बंद करे, लेफ्ट नासिका से शक्ति से सांस भरे और शक्ति से छोड़े। ऐसा साधारणतः 10 बार करें। 10 बार होने के बाद लेफ्ट से साधारण सांस भरे, दोनों नासिका बंद, आंतरिक कुंभक तीनों बंद, राइट से छोड़े, राइट नासिका बंद करे, बाह्य कुंभक तीनों बंद। ठीक है, चलो दूसरे कड़ी के लिए तैयार हो जाए। राइट अंगूठे से राइट नासिका हल्की सी बंद करे। अभी लेफ्ट नासिका से शक्ति से सांस भरे और शक्ति से छोड़े। ऐसा 10 बार करे। अभी मेरे साथ भस्त्रिका प्राणायाम की दूसरी कड़ी लेफ्ट नासिका से शुरू करें। शांत हो जाए।
लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे गहरी सांस भरे, लेफ्ट नासिका बंद, आंतरिक कुंभक तीनों बंद। सहन न होते हुए तीनों बंद क्रमानुसार खोले। राइट नासिका से धीरे धीरे सांस बाहर, राइट नासिका भी हल्की सी बंद करे, बाह्य कुंभक तीनों बंद। सहन न होते हुए धीरे धीरे आइए वापिस। भस्त्रिका प्राणायाम की तीसरी कड़ी, राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा, अनामिका से लेफ्ट नासिका बंद करे। अभी तीसरी कड़ी में क्या करना है, शक्ति से राइट से सांस लेना है, शक्ति से लेफ्ट से छोड़ना है, फिर शक्ति से लेफ्ट से लेना है और शक्ति से राइट से छोड़ना है। ये हुआ एक राउंड, ऐसे 5 राउंड करना है। तो चलिए भस्त्रिका प्राणायाम की तीसरी कड़ी मेरे साथ शुरू करें। शांत हो जाए। अभी राइट नासिका से धीरे धीरे गहरी सांस भरे, राइट नासिका बंद, आंतरिक कुंभक तीनों बंद। सहन न होते हुए तीनों बंद क्रमानुसार खोले। लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे सांस बाहर, लेफ्ट नासिका हल्की सी बंद करे, बाह्य कुंभक तीनों बंद। सहन न होते हुए तीनों बंद क्रमानुसार खोले। आइए वापिस। अभी भस्त्रिका प्राणायाम की चौथी और आखिरी कड़ी, दोनों हाथ घुटनों पर लॉक करे, कमर गर्दन सीधी रखे। अभी चौथी कड़ी में क्या करना है, शक्ति से दोनों नासिका से सांस भरना है और शक्ति से दोनों नासिका से बाहर छोड़ना है। ऐसा 10 बार करना है। तो चलिए भस्त्रिका प्राणायाम की चौथी और आखिरी कड़ी के लिए मेरे साथ शुरू करें। शांत हो जाए। अभी दोनों नासिका से धीरे धीरे गहरी सांस भरे, आंतरिक कुंभक तीनों बंद। सहन न होते हुए तीनों बंद क्रमानुसार खोले। दोनों नासिका से धीरे धीरे सांस बाहर, फिर बाह्य कुंभक तीनों बंद। सहन न होते हुए तीनों बंद क्रमानुसार खोले। आइए वापिस। आंखें बंद रखे और इस स्थिति में कुछ क्षण विश्राम करें। आंखें बंद, पूरा ध्यान शरीर के अंदर। देखिए हमारे शरीर में प्राणवायु कितने बढ़ गया है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। किशोरी समोर। अभी ये दूसरा पार्ट हुआ। अभी तीसरा पार्ट हम करने जा रहे हैं, मुद्रा अभ्यास। ये मुद्रा अभ्यास, इससे भी हमारे शरीर की इम्यूनिटी बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाती है। जो अलग अलग टाइप के विषाणु है वो हमारे शरीर में जाते नहीं, उसको रोकने की प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है। तो ये जो मुद्रा है, ये मुद्रा का नाम है प्राण मुद्रा। ये प्राण मुद्रा कैसी करना है ये मैं बताता हूं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये 5 अंगुलियां है, 5 अंगुले में 5 तत्व है। अंगूठे में है अग्नि तत्व, तर्जनी में है वायु तत्व, मध्यमा में आकाश तत्व, अनामिका में पृथ्वी तत्व, कनिष्ठिका में जल तत्व। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, उसमें विलीन होने वाला है। जो तत्वों की कमी होती है हमारे शरीर में, उसके रिलेटेड विकार आना चालू होता है। तो हमारा शक्ति, प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए तो क्या करना चाहिए, हमारा जो जल तत्व है और पृथ्वी तत्व, इसको हमने अग्नि तत्व में मिला दिया तो ये बनती है प्राण मुद्रा। और एक बार मैं बोलता हूं, सबसे छोटी अंगुली कनिष्ठिका का अग्रभाग और मध्यम अनामिका अंगुली रिंग फिंगर उसका अग्रभाग, वो दोनों को अंगूठे के अग्रभाग में लगा दे, यानी जल तत्व
पृथ्वी तत्व हम अग्नि तत्व में मिलाने से हमारी जो प्राणवायु शक्ति बढ़ जाती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। कौन से भी जो विषाणु है, बैक्टीरिया है, उसको रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा बहुत अलग अलग टाइप का है, वो आज का विषय नहीं है। सिर्फ एक ही मुद्रा मैं बताता हूं जो हमारी प्राण शक्ति बढ़ाता है। ये होने के बाद एक तर्जनी और मध्यमा दोनों अंगुली मिला के रखे, दोनों कलिया घुटनों पर, आंखें कोमलता से बंद और साधारण सांस लेते रहे और छोड़ते रहे। सांस लेते रहे, छोड़ते रहे, पूरा ध्यान अपने श्वासों पर। साधारण सांस ले और साधारण सांस छोड़े। ये जो प्राण मुद्रा हम अभी करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि ये मुद्रा करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है, जिससे वायरस बैक्टीरिया के आक्रमण पर असर होता है, असर नहीं होता है। प्राण मुद्रा करने से प्राण शक्ति की कमी को दूर किया जा सकता है। हमारे शरीर में श्वास नली स्वस्थ रहती है, शारीरिक कमजोरी, भावनाओं की कठोरता, मन की अशांति दूर होती है, नव शक्ति का संचार होता है, विटामिनों की कमी इससे दूर होती है, एकाग्रता बढ़ती है, स्नायु मंडल सशक्त बनते हैं, सुनापन दूर होता है। बहुत सारे लाभ है। लेकिन अभी कोरोना के पीरियड में हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है और रोग प्रतिकार शक्ति इससे बढ़ती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्राण मुद्रा दिन में सुबह 15 से 20 मिनट और शाम को 15 से 20 मिनट करें। जब आपको समय है जरूर करें, इससे आपकी प्राण शक्ति बढ़ जाएंगी। बहुत ही बढ़िया है प्राण मुद्रा। अभी यहाँ समय कम होने से हम 2-3 मिनट ही लिया है। घर पे आज इसका बस 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को करें। अभी चौथा पार्ट ध्यान। ध्यान का भी हमारे शरीर के लिए, ये तीनों शरीर के लिए अनन्य साधारण महत्व है। लेकिन जो तीसरा शरीर है, कारण शरीर, उसको इसका ध्यान करने से अच्छी तरह से शुद्धि होती है। तो हर दिन ध्यान करना भी बहुत जरूरी है। कैसे ध्यान करना मैं आपको विधि बताता हूं, आप सुने और हमारे साथ करें। उसके लिए कौन से भी ध्यानात्मक आसन में बैठना जरूरी है। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन। जिन्हें बैठने में तकलीफ है वो कुर्सी पर बैठ सकते हैं, सोफे पर बैठ सकते हैं, लेकिन हमारी कमर गर्दन सीधी रखना है, उसको सपोर्ट नहीं देना है। दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद रखे। ध्यान 5 कड़ियों में लेंगे। पहले अनुलोम विलोम का जप करेंगे, फिर मनी मन ओम का जप करेंगे, ओम का जप, फिर सांसों पर ध्यान, संकल्प और दीर्घ ओम। पहले 2 बार ओम का जप सुने और उसके पश्चात आप सब हमारे साथ जुड़ जाए। ओम 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 ओम। शांत हो जाए, मनी मन ओम का जाप करें।
आंखें बिल्कुल ना खोले, आंखें बंद ही रखे, पूरा ध्यान अपने नासाग्र के पास, पूरा ध्यान अपने नासाग्र के पास ले। जब हम सांस लेते हैं पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। जब सांस को छोड़ते हैं पूरे शरीर को विश्राम, इसकी भी अनुभूति करें। जब हमारी सांस राइट नासिका से चलती है उसे सूर्य नाड़ी कहा जाता है, उससे हमारे शरीर में गर्मी उष्णता पैदा होती है। जब सांस हमारी बाई नासिका से चलती है उसे चंद्र नाड़ी कहा गया है, उससे हमारे शरीर में शीतलता ठंडक पैदा होती है। मन में जो भी विचार आते हैं आने दे, विचार अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, उसके बारे में ना सोचे। विचारों की तरफ साक्षी रूप से देखे, साक्षी भाव से देखे। विचार आते हैं और चले जाते हैं, विचारों में ना उलझे। इस स्थिति में संकल्प करें, दिन के 24 घंटों के व्यस्त समय से कम हर दिन 1 घंटा निकालकर हम खुद के लिए योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान करेंगे। मित्र परिवार को योगाभ्यास के लिए प्रवृत्त करेंगे। एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा साधक बनने का प्रयास करेंगे। आसन करने से शरीर की शुद्धि होती है, प्राणायाम करने से मन स्वस्थ होता है, चंचलता दूर होती है, और ध्यान करने से हमारे चित्त की शुद्ध होता है। पूरा ध्यान सांसों पर, नासाग्र के पास। दिन में कम से कम एक निष्काम काम करने के संकल्प करें, बड़ी श्रद्धा से करें। रात में सोने के पहले दिन भर किए हुए सभी कार्यों को याद करें। जो कार्य अच्छे किए हैं वो बार बार करने का संकल्प करें। कुछ कार्य गलत किए हो वो दोबारा न करने का संकल्प करें। दीर्घ ओम से ध्यान की समाप्ति। दीर्घ ओम से एक सांस भरे, कुछ क्षण शांत बैठे, आंखें बंदी रखे, पूरा ध्यान शरीर के अंदर। ध्यान करने से हमारा जो मन शांत हुआ है, चेहरे पे जो प्रसन्नता आई है वो अनुभव करे, और मनी मन प्रार्थना करे यही शांति दिन भर टिकी रहे, यही सकारात्मकता दिन भर टिकी रहे। और आप सब में अनुभव किया होगा, जब हम योगाभ्यास करते थे हमारा पूरा मन वर्तमान काल में था, भूतकाल और भविष्य काल में नहीं जाता था, इसलिए शांत हुआ और उसका प्रभाव हमें समझ में भी आने लगा। इसीलिए दिन में ज्यादा से ज्यादा वर्तमान काल में रहने का प्रयास करें। आंखें बंद रखते हुए दोनों हथेली आपस में मिला ले, उसका थोड़ा सा घर्षण करें। उत्पन्न हुई ऊर्जा को मुखमंडल पर प्रदान करें। ये दिव्य ऊर्जा को सभी शरीर पर प्रदान करें। दोनों हाथों का कोण बनाकर आंखों पर रखे, उसके अंदर 2-3 बार आंखें खोले, बंद करें। कोण ऐसा बनाना है कि अंदर एकदम अंधेरा हो। सामने ज्यादा से ज्यादा झुककर, हो सके तो माथा जमीन पर लगाकर अपने इष्ट देवता का प्रणाम करें, उनको धन्यवाद दे। धीरे से आंखें खोले, पद्मासन खोले, चटनों की हल्की सी मसाज। ये होगा चौथा भाग। अभी आखिरी भाग, 5वां जो भाग है वो हम करने जा रहे हैं, उसके बाद ये योगा सेशन खत्म हो जाएगा। वो जो 5वां भाग है वो है शुद्धि क्रिया। और ये शुद्धि क्रिया जो
कोरोना को रोकने के लिए सबसे प्रभावशाली है वो है जल नीति। उसके लिए ये जल नीति पात्र मार्केट में भी अवेलेबल है और आप मंगा सकते हैं या हमारे पास भी ये अवेलेबल है। सिर्फ 40 रुपए इसकी कीमत है। पूरे पात्र से हम जल नीति क्रिया कर सकते हैं और निश्चित स्वरूप से कोरोना से दूर रह सकते हैं। सिर्फ एक क्रिया हर दिन करना जरूरी है। कैसे करना है मैं इसका डेमो अभी आपको दिखाता हूं। ये जो लोटा है इसमें पहले गुनगुना पानी भरना है। ये लोटे में मैं गुनगुना पानी डाल रहा हूं। ये गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालना है, आधा चम्मच। आधा चम्मच नमक डालना है। हाँ, तो उसके बाद ये जो क्रिया है आपने सुबह नहाने के पहले बाथरूम में किया था और अच्छा है, नहीं तो मैंने यहाँ बकेट लेके आई है। ये बकेट के सामने मैं खड़ा हूं। अभी जिस नासिका हमें अच्छी तरह से चलती है उस नासिका से शुरुआत करनी है। समझो हमारी राइट नासिका चालू है तो राइट नासिका से शुरू करना है। फिर हमारा लेफ्ट हैंड लेफ्ट घुटनों पर ऐसा रखना है, थोड़ा सा सामने की तरफ झुकना है और ये इसकी जो टोटी है ये पात्र की हमारे राइट नासाग्र में फिक्स करना है। फिर गर्दन को थोड़ा सा झुकाना है। और देखिए लेफ्ट नासिका से पानी आना चालू हो गया। और आधा दूसरी तरफ। फिर अभी लेफ्ट नासिका से उसके लिए हमारे राइट घुटनों पर हाथ रखे, थोड़ा सा राइट की तरफ झुके। फिर ये जो टोटी है लेफ्ट नासाग्र में फिक्स करे, थोड़ा सा राइट की तरफ झुके और देखिए राइट नासिका से पानी आना चालू हो गया। और मुंह खुला रखना है इसमें, ये ध्यान में रखे। मुंह से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। ऐसा आधा राइट नासिका से आधा लेफ्ट नासिका से। उसके बाद कपालभाति प्राणायाम करना है। बोले तो फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ना है। ये कपालभाति होने के बाद फिर वापिस आना है। फिर एक क्रिया हो जाती है। बहुत ही सिंपल ये शुद्धि क्रिया है। ये शुद्धि क्रिया से निश्चित स्वरूप से हम करणों को विषाणु को रोक सकते हैं। ये 5वीं क्रिया थी। और लास्ट में मैं और बताना चाहता हूं, ये योगाभ्यास हमने आज मैंने जो 5 स्टेप आपको बताया है, पहले बताया था आसन, दूसरा प्राणायाम, तीसरा मुद्रा, चौथा ध्यान और 5वां शुद्धि क्रिया। ये 5 चीजें जितना आपको समय है, आधा घंटा है तो आधे घंटे में आप कर सकते हैं, पौन घंटा, 1 घंटा। आज थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन आप जब खुद में करेंगे तो 1 घंटे में ये सब कुछ हो जाता है। समय कम है तो उसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये 5 क्रिया करना जरूरी है। मुद्रा अभ्यास आप शाम को भी कर सकते हैं, ऐसा भी चल सकता है। ध्यान शाम को भी कर सकते हैं, ऐसा इसमें ब्रेक भी कर सकते हैं। ठीक है। तो और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं, ये सिर्फ योगाभ्यास ये एक पार्ट है। उतना करने से भी हम पूरा रोग मुक्त और तनाव मुक्त नहीं रहेंगे। हमारी जो इम्यूनिटी बढ़ाना है इसके लिए सिर्फ यही एक नहीं है, उसके लिए हमारी जीवन शैली जो है वो भी बहुत इससे इम्पोर्टेंट है, ऐसा मैं समझता हूं। तो हमारी जीवन शैली कैसी रखना चाहिए उसके लिए मैं आपको बताता हूं।
तो शॉर्ट में आज बताने की कोशिश करता हूं। उसके लिए भी 1 घंटा 1.5 घंटे का लेक्चर दिया तो भी चल सकता है, लेकिन एकदम शॉर्ट में मैं बताता हूं हमारी जीवन शैली कैसी हो। सुबह हम जल्दी उठे, साधारणतः ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय के पहले 4 बजे उठे तो सबसे बढ़िया। 4 बजे पॉसिबल नहीं तो 4:30, 5, 5:30, लेकिन सूर्योदय से पहले उठे। उठने के बाद पहला जो काम करना है, हमें पानी पीना है आधा लीटर, और वो पानी भी गुनगुना हो, कोमट पानी हो, भाने में रखा हो, वो पानी पीना है। कभी भी फ्रिज का पानी नहीं पीना है, कूलर का पानी कभी भी नहीं पीना है, कितनी भी गर्मी हो बिल्कुल पीना नहीं है, ये ध्यान में रखें। सुबह तो सिर्फ कोमट पानी ही पीना है, लेकिन दिन भर भी ठंडा पानी जो है फ्रिज और कूलर का नहीं लेना है। हाँ, आप मिट्टी के जो माट है, रांधन है, वो पानी ले सकते हैं, लेकिन फ्रिज और कूलर का पानी बिल्कुल ना ले। ठीक है, आधा लीटर पानी गुनगुना वो पी सकते हैं। चाहे तो उसमें आप नींबू डाले, शहद डाले, वो आधा लीटर पानी सिप सिप कर कर पीना है, एकदम फास्ट नहीं पीना है, और वो बैठ के पीना है, खड़े बिल्कुल पीना नहीं है। खड़े पानी पियोगे तो आपने घुटनों के दर्द, अलग अलग दर्द बाद में आपको बुढ़ापे में चालू हो जाएंगे। तो इसके लिए कभी भी पानी पीते समय बैठ के पीना है। तो पहला काम कौन सा करना है, सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में आधा लीटर पानी पीना है। उसके बाद फिर आप ब्रशिंग कर सकते हैं, ब्रश के पहले ये करना है, ब्रश कर सकते हैं। फिर आप जो आपने सुबह की प्रातः विधि है वो कर सकते हैं। उसके बाद फिर बाथरूम में आके 3 चीजें करना है। पहला, गर्म वाफ ही स्टीम लेना है। गर्म वाफ की दिन में 2 से 3 बार लेना है। पहली सुबह ले, स्टीम लेने के बाद थोड़ा सा गर्म पानी लेके उसमें नमक डाले और गार्गल्स करे। ये गार्गल्स भी बहुत इफेक्टिव है हमारे गला यहाँ का पोर्शन शुद्ध रखने के लिए। और गार्गल करने के बाद फिर वही मैंने अभी जो बताया, जल नेति करना है। गार्गल के लिए भी पानी आप इसमें ले सकते हैं, नमक डाल के थोड़ा सा करना, गार्गल करना, फिर उसमें और थोड़ा सा पानी डाल के जल नेति कर सकते हैं। ये दोनों तीनों आप बाथरूम में करें, वहां का एरिया वेट रहता है, उसके लिए अलग कुछ करने की जरूरत नहीं। और जब तक अपनी बकेट गर्म पानी से भरती है तब तक ये क्रिया हो जाती है, आपका समय भी बचता है। तो नहाने के पहले करें, ये क्रिया होने के बाद फिर नहाए, और नहाने के बाद ही योगाभ्यास करें। और एक बार मैं बोल रहा हूं, पहले नहाए और नहाने के बाद ही योगाभ्यास करें, तभी हमारा योगाभ्यास अच्छी तरह से होता है। योगाभ्यास करने के बाद फिर कौन सा भी, अभी मार्केट में बहुत सारे अलग अलग काढ़े आए हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अलग अलग तरीके आए हैं। तो आपको जो भी आप कर रहे हैं वो कर सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन 2-3 बार गर्म पानी पिए तो उसका लाभ अच्छा है। ग्रीन टी लिया तो भी अच्छा है। गर्म पानी लेते रहे। ये होने के बाद सुबह का खाना जल्दी खाए। खाना वो सुपाच्य खाना होना चाहिए, हो सके तो वेजिटेरियन ही खाना खाए, और गरम गरम खाना खाए, ठंडा खाना न खाए। फ्रिज में खाना कभी भी ना रखे, फ्रिज वाला खाना कभी ना खाए। फिर दोपहर को आप काम कर सकते हैं, काम को जा सकते हैं, और जब आपको समय मिला कम से कम 20 मिनट 25 मिनट धूप में रहना है। तो आजकल हम शहर में रहते हैं तो धूप हमारे शरीर पर आती ही नहीं है। इसके लिए डी जीवनसत्व हो या बाकी की भी बीमारियां चालू हो गई है, वो निकालने के लिए कम से कम 20 मिनट धूप में खड़े रहे। शाम को घर आने के बाद फिर हो सके तो जल्दी खाना खाए। और जो खाना खाने का एक आपको ध्यान में रखना है, जितनी भूख रहती है, भूख से ज्यादा 75% हमने खाना खाना है, 25% कभी भी गैप रखना है। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। शाम का खाना सिर्फ 50% खाना है, 50% पेट रिकामा रखना है। आधा घंटे के पास पानी पीना है, और खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद सोना है। खाना खाने के तुरंत बाद सोना नहीं है। शाम को भी आप थोड़ा सा पैदल कॉलोनी में या आजू बाजू में जा सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, मुद्रा कर सकते हैं, या आपका जो भी हॉबीज है वो हॉबीज आप कर सकते हैं, गा सकते हैं, या जो भी कुछ करना है वो कर सकते हैं।
अच्छी तरह से कुछ भजन हो वो सुन सकते हैं। सोने के पहले कम से कम आधा घंटा कोई भी तनावपूर्ण कार्यक्रम टीवी पे ना देखे या पिक्चर ना देखे जिससे हमें तनाव आए। शाम को रात को साधारणतः 10 बजे के करीब सो जाए। सोने के पहले दिन भर जो जो आपने किया है उसका आप बिल्कुल अवलोकन करें, कौन कौन सा काम किया है वो एक बार उसके ऊपर नजर करे। जो अच्छा किया है वो बार बार करने का संकल्प करे, कुछ गलत किया है तो वो 2 बार नहीं करने का संकल्प करे और इस तरह सो जाए। कम से कम 6 से 7 या 8 घंटे की नींद जरूर ले और सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे के करीब उठे। ये जीवन शैली हमने बनाई तो निश्चित रूप से हम अच्छे रह सकते हैं। इसके साथ और भी कुछ चीजें हम कर सकते हैं। हम अच्छे मित्र जोड़े, मित्रों के साथ रहे, मित्रों के साथ हंसे खेले मस्ती करे, वो बहुत हमारे शरीर के लिए जरूरी है। दिन भर सकारात्मक रहे। घर में अपने जितने भी सदस्य हैं घरों के सदस्यों के साथ अपनी अच्छी तरह से वार्ता करे, संवाद करे। हो सके तो तनावपूर्ण संवाद टाले। खाना खाते समय टीवी मोबाइल बिल्कुल ना देखे और बातें भी जो करेंगे तो तनावपूर्व बातें बिल्कुल खाना खाते समय ना करे, दर्द भरी बातें ना करे, कोरोना का नाम बिल्कुल ना निकाले। ऐसा कुछ हम करते रहे तो निश्चित रूप से हमारी इम्यूनिटी अच्छी बढ़ जाती है और हम अच्छे रह सकते हैं। हमारा ऑक्सीजन लेवल भी शरीर की अच्छी तरह से बढ़ सकती है। और सबसे लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूं, बी पॉजिटिव। हर बार पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे और अपनी विल पावर बढ़ाए। जितना आप विल पावर बढ़ाओगे, सकारात्मक रहोगे, इतनी अपनी रोग प्रतिकार शक्ति इम्यूनिटी बढ़ेगी। जितना आप निगेटिव सोचेंगे, जितना आप डरोगे, उतनी अपनी इम्यूनिटी फास्ट कम हो जाएगी। तो इसके साथ ये करने से बिल्कुल हम स्वस्थ रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं, तनाव से मुक्त रह सकते हैं, कोरोना से भी निश्चित रूप से मुक्त रह सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का योगाभ्यास यहाँ समाप्त करता हूँ। और एक बार जो अरेंज किया है आईसीएम कॉलेज में, उनके डायरेक्टर हमारे मित्र पद्मावत सर, सभी सिकरे सर, सभी एचओडी, प्रोफेसर, स्टूडेंट और बाकी सब जो इस कार्यक्रम को जुड़े हुए, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। और एक बार हमारे जो योग टीचर है उन्होंने आपको बहुत अच्छी तरह से डेमो दिखाया है, उनका भी मैं एक बार परिचय करवा के देता हूं। ये है विद्या ताकसांडे, जिला प्रधान भारतीय योग संस्थान की, वर्षा देश पांडे, ये भी क्षेत्र प्रधान है, किशोर ताकसांडे योग शिक्षक है और दिनेश देश पांडे ये भी योग शिक्षक है। ये जो योगा सेशन हम लेते हैं ये भारतीय योग संस्थान, ये दिल्ली की संस्था है। भारत भर में 4000 जगह इसके क्लासेस चालू है। महाराष्ट्र में 25 साल पहले 96 में श्री अशोक जी बसेर इन्होंने ये योगाभ्यास पुणे में चालू किया था और धीरे धीरे वो हर एक शहर में आज फैला चुका है। औरंगाबाद में 6 साल पहले ये हमने शुरू किया था 2 क्लास से और अभी आनंद है कि हम 40 से ज्यादा जगह ये योगाभ्यास ले रहे हैं। और एक बार सबका धन्यवाद। करो योग, रहो निरोग। Thank you, sir. I will request Kunte madam to go for vote of thanks. At the same time, I will thank to Dr. Bhosle sir and Dr. Tatayat sir, those who attended this particular webinar, and with their blessings, I request Kunte madam to go for vote of thanks. Yes, sir. A warm and grateful morning to our most valued, honorable Chief Guest, Dr. Uttam Kalavani, sir, Director of ICWM, Dr. C.S. Padmavat, sir, Vice Principal, Professor H.L. Jadhav, sir, all the yoga teachers, HODs, and everyone gathered here. It's my privilege to propose a vote of thanks on this occasion. I, on the behalf of Civil Engineering Department and the entire fraternity present here today, and on my own behalf, extend a very hearty vote of thanks to Dr. Uttam Kalavani sir, Varsha Deshpande madam, Dinesh Deshpande sir, Kishore Tatpande sir, Vidya Tatpande madam, for taking time from your respective schedules to grace this occasion. We are all inspired by your great words. I also extend my thanks to Professor
VP Shikre sir for his enormous cooperation in the organization of this event. Thank you very much, everyone. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank Thank you you, all. sir. Thank you, team. Thank you very much.